Where there is no struggle, there is no strength. जहाँ पे कोई संघर्ष नहीं होता है वहाँ पे कोई बल नहीं होता है। My brothers and my sisters, what sets the stable apart from the unstable is the ability to endure. और जो स्थिर है और जो स्थिर नहीं है, इनमें अलगाव ये है कि जो स्थिर है वो झेल पाते हैं। We welcome you to this devotion in the name of Jesus इस Christ. डिवोशनल में आपका स्वागत है मसीह यीशु के नाम I से। want us to learn a lesson or two from the life of Jesus Christ on what it means to have endurance. हम जो है यीशु के जीवन से सीखेंगे कि धीरज रखना इसका क्या मतलब है। I want us to quickly open our Bibles to Hebrew chapter 12 verse 1 and 2. हम इब्रानी की किताब में खोलेंगे 12वां अध्याय पहला और दूसरा वाक्य। I'm going to read for you from the New King James Version. अंग्रेजी में न्यू किंग जेम्स वर्जन से पढ़ेंगे। It says, "Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that's set before us." इस कारण जबकि गवाह का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। And verse 2 says, "Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God." और दूसरा वाक्य, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। Beloved of the Lord, परमेश्वर के प्रियो, there is nothing that you and I are going through that Jesus did not go through. और हम जिन चीजों से गुजरते हैं यीशु भी वही चीजों से गुजरे। Jesus knows your pain and my pain much better than we know it. यीशु हमारे और आपके दर्द को हमसे बेहतर जानते हैं। You may see it at the superficial level, but he sees it at the root level. आप जो है बस ऊपरी शायद देख रहे होते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो है जड़ में देखते हैं। But Jesus expects you to endure. लेकिन यीशु मसीह हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम धीरज को रखें। And he himself set an example of endurance. और उन्होंने हमारे लिए एक धीरज का उदाहरण वो बने। I want us to look at the life of Jesus Christ a little bit closely. और थोड़ा सा नजदीकी से यीशु के जीवन को हम There are देखेंगे। at least 4 things that I want us to learn this morning from him. ये उनसे यीशु से 4 बातों को हम सीखेंगे। Number 1 thing that I want us to learn is that he was tempted. पहली बात जो है यीशु मसीह को प्रलोभन में डालने की कोशिश की। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, many of us think that that he was just tempted in stray incidences in the 40 days. हमको ऐसे लगता है कि 40 दिनों में जो है उनको प्रलोभन में डालने का प्रयास किया गया। Maybe in the 40 days, maybe he was only tempted once or twice or thrice. और ऐसा हम सोचते हैं कि 40 दिन में एक बार 2 बार या 3 बार जो है उनको प्रलोभन में फंसाने का प्रयास किया Luke गया। chapter 4 verse 2 says that he was tempted for 40 days. और देखिए लूका की किताब में दूसरे आयत में लिखा हुआ है, क्षमा कीजिएगा, चौथे आयत के दूसरे वाक्य में लिखा हुआ है कि 40 दिन यीशु मसीह को प्रलोभन में डालने का प्रयास किया गया। That means to say that Jesus was tempted by the enemy 40 good days continuously and constantly. इसका मतलब है कि शत्रु यीशु मसीह को 40 दिन निरंतर प्रलोभन में डालने का प्रयास कर रहा He was था। whispering him in his ears, शत्रु जो है मसीह के कान में फुसफुसा रहा था trying to sow doubt in his heart. और यीशु के हृदय में शंका को बोने का प्रयास कर He रहा था। tried every possible trick in the book so that he may fall, the Son of God may fall. और उसने जो है हर एक चालाकी का प्रयोग किया ताकि यीशु मसीह जो है वो गिर जाए। But Jesus did not do that. लेकिन यीशु मसीह गिरे नहीं, He came out with flying colors. वो जो है सफल होकर बाहर आए। If you trust in him, अगर हम और आप उन पर the भरोसा रखते Spirit हैं, who's worked in him,
is working in you. पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह में कार्यशील थे, वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्यशील He है। will strengthen you in the name of पवित्र Jesus. आत्मा हमको बल देंगे मसीह यीशु के नाम से। After 40 days, what happened? 40 दिन के बाद क्या हुआ? Satan fled, शत्रु जो है, शैतान जो है, and भाग गया the angels came and ministered to him. और स्वर्गदूत आए और यीशु मसीह की सेवकाई करने लगे। And Jesus went out and did great ministry. और यीशु मसीह जो है आगे चलकर महान सेवकाई को करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Even you will experience ministration of angels if you endure in the name of Jesus. देखिए, हम और आप अगर धीरज को बनाए रखेंगे तो स्वर्गदूत भी हमारी भी सेवकाई करेंगे। Number 2 thing, what Jesus went through. और दूसरी बात जो यीशु मसीह गुजरे, Number 2 thing is that he went through accusations. और दूसरी बात जो है उन पर आरोप लगाया गया। John chapter 7 verse 12 says that some called him he is good and some called him and said he deceives. और देखिए, यूहन्ना के 7वें अध्याय के 12वें वाक्य में लिखा हुआ है कि चंद लोग जो है उन्होंने अच्छा कर कर कहा और बाकी के लोग जो है ये कह रहे थे कि ये ठगता है। In chapter 8 verse 48 of John, they called him even demon possessed. और यूहन्ना के 8वें अध्याय के 48वें वाक्य में वहां पे लोग उनको इस तरह से भी बुलाते हैं कि इसमें दुष्ट आत्माएं हैं। They accused him unfairly. और उन्होंने लोगों ने यीशु मसीह पर आरोप लगाया, But Jesus kept on running. लेकिन यीशु मसीह दौड़ते रहे, He did not look back. पीछे नहीं मुड़े। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, what your accusers say does not matter. और आपके दोष लगाने वाले आप पर क्या दोष लगाते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। You know who you are, आप जानते हैं आप कौन है, and your God, your maker, knows who you are. और आपका सृष्टिकर्ता जानता है कि आप कौन है। All that matters is that. बस ये मायने रखता है। But make sure that you don't come under the pressure of accusations. लेकिन आप जो है ये निर्धारित कर ले कि आप पर दोष लगाने वाले का असर आप पर न हो। Number 3 thing what Jesus went through, और तीसरी बात जो यीशु मसीह गुजरे, it was the rejection. वो लोगों का तिरस्कार था। His own family thought that he was a madman. और उनके खुद के परिवार के लोगों ने सोचा कि यीशु मसीह जो है वो सही नहीं है। His neighbors did not believe him. और उनके पड़ोसी ने उन पर विश्वास नहीं रखा। In Luke chapter 4 verse 29 we can see that they got angry with him and angry on him and they tried to kind of push him off the cliff to kill him. और लूका की किताब में हम देखते हैं 4था अध्याय और 29वें वाक्य में वे लोगों ने प्रयास किया कि यीशु मसीह को ऊपर जो है पहाड़ से गिरा दे। It's such a discouraging thing. ये बहुत ही निराश करने वाली बात The है। ones whom you love very much, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, the ones who knows you from your beginning, और जो शुरुआत से आपको जानते हैं, when पहचानते they हैं, don't believe in you, when they don't trust in you, when they look down on you, there is nothing more discouraging than that. जब वो आपको आप पर विश्वास नहीं करते हैं, जो आपको बहुत ही कम समझते हैं, आपका मान नहीं करते हैं, तो ये बहुत निराशमयी बात होती है। It's an utter rejection. ये तिरस्कार है। Jesus overcame that feeling of rejection. यीशु मसीह जो है इस पर हावी हुए। You too have the power to overcome that आप rejection. में मुझ में भी ये सामर्थ्य है कि हम इस पर हावी हो पाए। Overcome that rejection, वो तिरस्कार को जो है आप उस पर हावी हो जाए and you will be a conqueror और हम जयवंत होंगे in the name of मसीह Jesus. यीशु के नाम Number से। 4, most importantly, what Jesus went through, चौथी बात जिस चीज से यीशु मसीह गुजरे वो ये है, he suffered shame. शर्म को उन्होंने महसूस किया। 2 Corinthians chapter 5 verse 21 says something very beautiful. दूसरी कुरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 21वें वाक्य में बहुत सुंदर कुछ लिखा हुआ The है। one who knew no sin became sin so that you and I may be declared righteous before God. जो पाप को नहीं जानते थे वो हमारे और आपके लिए पाप बन गए ताकि हम और आप जो है परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे। Though he never stole, उन्होंने चोरी चकारी नहीं की, never lied, कभी झूठ नहीं बोला, never lusted, कभी पराई स्त्री को गलत नजर से नहीं देखा, never killed, कभी कत्ल नहीं किया, became a sin, emblem of sin on the cross of Calvary. कलवरी क्रूस पर जो है वो पाप का एक चिन्ह बन गए। Took the place of all those liars, all those lusters, all those people who lusted, all those adulterers, all those murderers.
और उन्होंने जो है वो सारे झूठ बोलने वाले, वो सारे व्यभिचारियां, वो व्यभिचार करने वाले, वो सारे कत्ल करने वाले लोगों का जगह उन्होंने ले लिया। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, what made Jesus to endure so much? यीशु मसीह ने क्यों धीरज बनाए रखा? What kept him running this race? क्यों वो इस दौड़ को दौड़ते रहे? It is very beautifully mentioned in Hebrews chapter 12 verse 2, very और beautiful. इब्रानी की किताब 12 अध्याय दूसरे वाक्य में बहुत सुंदर रीति से लिखा हुआ It है। says here, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Further down it says, for the joy that was set before him. Listen to this. For the joy that was set before him. There is a joy that you and I are going to experience if we endure in this moment. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, वो आनंद अगर हम धीरज बनाए रखेंगे तो आगे चलकर जो है आनंद हमारा भाग होगा। He knew what is kept for him. वो जानते थे कि उनके लिए क्या रखा हुआ He है। was from heaven वो स्वर्ग से थे and he was to go back to heaven. और स्वर्ग जाने वाले थे। He knew that his period was very brief on earth. वो जानते थे कि उनका समय इस पृथ्वी पर बहुत कम है। He wanted to please his father. वो इस कम समय में अपने पिता को प्रसन्न करना But चाहते he थे। knew when he would go back that he will be seated at the right hand of God. वो जानते थे कि जब वो वापस जाएंगे तो पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान There होंगे। will only be joy ever after. He knew it very और वो well. जानते थे कि आनंद ही आनंद होगा अनंतकालीन। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, that is the same promise that holds for you and me. वही वादा आपके मेरे लिए है। If you endure this small little time, अगर हम इस छोटे से थोड़े से समय में धीरज को बनाए रखते if हैं, you know that you are coming from heaven and you're going to heaven, अगर आप ये बात को जानते हैं कि आप स्वर्ग से आए हैं और स्वर्ग जा रहे हैं, there is a great joy that is awaiting for you in heaven. एक बड़ा आनंद जो है हमारे आपके लिए रुका हुआ है स्वर्ग में। You will never ever want to give up enduring. हम जो है धीरज रखना बंद नहीं करेंगे। I pray that the Lord Almighty may minister to you, speak to you in these times of difficulty. और मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर आपकी सेवकाई करे, परमेश्वर आपसे बात करे इन कठिन समयों में। It's not easy to endure. आसान नहीं है धीरज को रखना। Pains are way too many, दर्द बहुत सारे हैं, but you have the help of the Holy Spirit with you, लेकिन पवित्र आत्मा जो सहायक है वो हमारे साथ and है the presence of God is with you. और परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ He है। who promised that He will never leave nor forsake you, He is with you. और जिसने ये वादा किया हुआ है वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो आपको कभी नहीं त्यागेंगे, वो आपके साथ है। Remember that He holds you in the palm of His hand. आप याद रखिएगा कि वो अपने हाथों में या हथेली में आपको धरे हुए हैं। Be encouraged. आप प्रोत्साहित हो जाइएगा, Face the difficulties. आप कठिनाइयों का सामना धीरज से You कीजिएगा। will overcome and enjoy all that God has for you in the days to come. आप हावी हो जाएंगे और आनंद उठाएंगे उन सारी बातों का जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है आने वाले दिनों में। Hallelujah. हालेलुया। I want you to spend some quality time in the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में अच्छा समय बिताइएगा। praying what you heard. जो आपने सुना इन बातों को प्रार्थना में If रखते you हुए, want to once again re-listen to the entire अगर आप message, पुनः जो है संदेश को सुनना चाहते हैं identify the problems that you're going through. तो आप पहचान लीजिएगा कि क्या समस्याओं से आप Bring गुजर a रहे हैं comparison with Jesus, what Jesus went through. और यीशु किन चीजों से गुजरे वो बातों को देख लीजिएगा। Surrender and submit your problems to the Lord. आप अपने समस्याओं को, अपनी परेशानियों को, अपने पीड़ा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिएगा। Look unto the Lord. आप प्रभु की ओर देखिएगा, He will help you to overcome them. वो आपकी मदद करेंगे कि आप हावी हो जाएं। When you come out, you will be stronger and mightier in the name of जब आप Jesus. बाहर निकल कर आओगे तो और ताकतवर और जो है मजबूत बनकर आओगे। It's our pleasure to bring this word to you. ये हमारा सौभाग्य है कि हम ये वचन को आप तक ले आ May पाए the हैं। Lord continue to be with you. परमेश्वर आपके साथ बने रहे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।